Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. In this period, we have to learn the difference between distance and displacement, speed and velocity, average speed and instantaneous speed, average velocity, instantaneous velocity, acceleration also, scalar acceleration and vector acceleration also, and some graphical representation, graphical questions and discussion on the basis of distance, speed, acceleration and time and so and so. Friends, I know that you know difference between distance and displacement. What is distance? Distance is the actual path covered between two positions, and displacement is the aerial distance between initial and final position. Friends, distance will be and displacement will be equal if path is a straight line, path is linear motion. Path is linear, then distance and displacement will be same if direction of motion is not changed. It means that if a body moved from position A to position B, then distance covered by the body and displacement of the body same. But if direction is changed either at once or twice or thrice, displacement will be less than the distance covered by it. And therefore, one statement that I am going to make now will be wrong. Which statement? Magnitude of displacement may be more than the distance covered by the body. Will it be true or wrong? Yes, I got the answer from Rishikesh Tirthe. Displacement is less than or equal to distance. Okay? तो अब डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं हम लोग. इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, हियर इज द ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट O, एंड दीज आर किलोमीटर मार्क्स. किलोमीटर्स मार्क्स है ये 2 किलोमीटर्स, 4, 6, 8, 10 and let 12. A car went from 0 mark to 12 and then returned to the let 2 kilometers mark. What is the distance? What is displacement? Means what is difference between distance and displacement? What is difference between distance and displacement? Will you help me? What is difference between distance and displacement? One told 20, other told 2 kilometers. What is difference between distance and displacement? चलेगा, मैं बताता हूं. Distance covered है 12, चले गया 12 तक, वापस आया 2 तक, मतलब ये 10 किलोमीटर. ये 12 और ये 10, 22 किलोमीटर्स. ये है डिफरेंस और ये है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट है 2 किलोमीटर्स. And that is why difference is 22 minus 2, that is 20 kilometers. अब इसमें डायरेक्शन तो का सवाल ही नहीं, क्योंकि बस ये डिस्टेंस की रिलेशन आया है. ओके, चलेगा. नाउ one, this part is let what 6 kilometers, and by turning towards his right and traveled 8 kilometers on straight path. What is the difference in distance and displacement? What is the difference between distance and displacement? Yes, correct है. 2 लोगों का, 3 लोगों का, 1 लोग का गलत हुआ.
Yes, it is. Yes, it is. Good, 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 good. Right. Friends, डिस्टेंस हुआ है 6+8, बट डिस्प्लेसमेंट तो ये यहां से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और ये बनता है 10 किलोमीटर्स. सो डिफरेंस विल बी 10 minus 14 means 4, or 14 minus 10 is 4. 4 किलोमीटर मैं डिफरेंस बोला. ओके, ये बात भी ओके. चलो अब बात करेंगे दूसरे इसकी. लेट ए बॉडी मूव ऑन स्ट्रेट पाथ फॉर 10 किलोमीटर्स and by changing his direction by 60 degrees, he traveled more 10 kilometer distance. Then what is the difference between distance and displacement? What is the difference between distance and displacement? सचिन शिंदे 5 किलोमीटर अंतर हे दिलंय का कोणतं दिलंय? सचिन शिंदेचं 5 किलोमीटर अंतर कोणत्या प्रश्नाचं आन्सर आहे सचिन? What is difference between distance and displacement? शुक्ला. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो इसका आंसर. दोस्तों डिस्टेंस तो है 20 किलोमीटर्स. डिफरेंस की डिस्प्लेसमेंट कितना? दोस्तों डिस्प्लेसमेंट तो ये है, but by triangle law of vectors, what will be? Resultant will be root of 10 square plus 10 square plus 2 into 10 into 10 into cos of कितना? क्या एंगल ये 120 है ये, या 60 है वो? 120 या 60? ये cos 60 है, दो वेक्टर्स के बीच में का एंगल है. क्या ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है? क्योंकि इस पहले वेक्टर को हम यहां शिफ्ट कर सकते. अब जाके कहा ये समझ में आता हमको कि ये 60 डिग्री एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में. अरे समझ गए राजनंदिनी? हाँ, तो ये अब ये cos 60 और ये 2 कैंसल होता. देन this is what root 3 times 10, and this will be 17.32. One can say that the difference will be now 2.68 or nearly equal to 2.7 किलोमीटर्स, है ना? बात समझ में आ गई? अब ये सवाल बस ऐसा ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ऐसा नहीं है. ऐसा पूछा जाएगा ये कि अगर कोई इस पाथ पर चले जाता है 40 के स्पीड से, मान लेते हैं, और दूसरा बंदा जाता है बिल्कुल एरियल डिस्टेंस से, एरियल टाइम, what should be the speed of that another person which is going on straight path?
so that they will reach simultaneously. क्यों? ये भी 40 से निकला, ये पहला भी 40 से जा रहा था, तो वो पहले कितने समय पहले चले जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा। सवाल फिजिक्स का है, कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब बातें। बात समझ में आई कि पैसा सवाल कैसे पूछा जाएगा? मैं ही यहाँ पे एक क्रिएट करूंगा सवाल आपकी मदद से, लेकिन पहला ये थोड़े एक दो बातें और समझाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। ओके, चलेगा? चले प्रोसीड? यस इट इज। तो ये हो गया दोस्तों। इफ वन बॉडी, अरे बस स्क्वायर क्यों? इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यहां पे एक बॉडी है, लेट दिस इज डायमीटर, no, this will not be diameter, that will be the equatorial plane, ये ऐसा डायमीटर है ना। नाउ a body is moving from point P with uniform speed and completed let 5 rotations, 5 rotations complete कर दिए, यूनिफॉर्म स्पीड उसकी v है एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ स्मॉल r है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 रोटेशंस? व्हाट इज द डिस्टेंस and displacement after 5 rotations? What is the distance and displacement after 5 rotations? Okay, distance 10 pi r, करेक्ट आहे। डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स दोन्ही विचारलं तर दोन्ही आन्सर सांगायला पाहिजे एकदाच, नाही का? डिस्टेंस है 5 times 2 pi r, वाइल डिस्प्लेसमेंट है 0, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन के बाद वो बॉडी P पॉइंट पर ही आएगी, है ना। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो आगे जाके कोई पूछेगा व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड भी वही रहेगी, है ना। एवरेज स्पीड भी वही रहेगी, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके, पर वो थोड़ा सा ज्यादा आगे की बात करेंगे। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ कंप्लीट, ओके चलो कोई बात नहीं। अब अगर एक आधा स्टूडेंट सेमी सर्कुलर ट्रैक पर चलता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज लेट 10 meters, a body moving on semicircular track of the radius of curvature 10 meters. If body reached from one end to other end, then what is difference between displacement and distance, or distance and displacement? What is difference between distance and displacement? What is difference between distance and displacement? Okay, okay, 11.4 सबका एक है। चलो को क्या है वो है पाई आर -2r, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ सेमी सर्कुलर सरकमफरेंस, हाफ सरकमफरेंस पाई आर, एंड डिस्प्लेसमेंट होता है सीधा जाने के बाद बस 2r। तो ये हुआ पाई -2 इज 1.14 इंटू r, ये 10, and this is why 11.4 meters will be the difference. Is this so? Okay. अब देखो दोस्तों,
मैं इस 90 डिग्रीज का आर्क बनाता हूं, यह सेमी सर्कुलर आर्क नको, अब आर्क बनाता हूं ये 90 डिग्रीज बनाने वाला, ये ऐसा है अपना सेमी सॉरी क्वार्टर सरकमफरेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर मानो 20 मीटर्स। अब अगर बॉडी चलती है ए पॉइंट से बी पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक, then what is difference between distance and displacement? What is difference between distance and displacement? Distance आया है पाई आर बाय 2, है ना रे, ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस माइनस डिस्प्लेसमेंट, ये तो पाई आर बाय 2 आया, माइनस ये हाइपोटेन्यूज चले आएगा दोस्तों, ये सीधा होगा ऐसा आएगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट तो हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस, दैट इज व्हाट √2 टाइम्स 20 मतलब आर, तो आर फिर से कॉमन, पाई बाय 2 होता है 1.57 माइनस √2 होता है 1.414 इंटू आर, आर है अपना 20, कितना डिफरेंस है ये डिफरेंस हम लोग छोड़ देंगे, ये तो पकड़ेंगे पहले 6, 7 में से 2 गए 5, और ये 5, ये 1 नहीं 1 नहीं 0 इनटू दिस 20, है ना, इज इट सो? क्या मेरा कैलकुलेशन बराबर है? 7 में से 6 में से गए 5 रह गए, 5 में से अरे एक सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 नहीं रहेगा ना, इधर इधर 1 रहेगा, 1, एम आई राइट? पाई बाय 2 इज 1.57, √2 इज 1.414, ये 20 तो है ही, आर कॉमन जो निकाला वो, सब्ट्रैक्शन आया है 0.156, 0.156 अगर आया है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कितना, 6 2 12 1, और ये 31, ये 0, तो ये मेरा 3.12 आया, तुम्हारा 8.6 कैसे आया था रे? अब अगर मैं बोलता हूं कि ये कर्वेचर है, इसका एंगल है लेट 30 डिग्रीज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है 4 मीटर्स, अब मेरी बॉडी चलती है ए पोजीशन से बी पोजीशन तक, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट? बोलो, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी गोज ऑन सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए टू बी? मेरे पास 4 आंसर्स में से 2 अलग अलग आ गए, कोई बोलता है 4.18, कोई बोलता है 2.09, कोई बोलता है 2.802 808, एक बोलता है 2.08, वाह रे वाह, you know that angle is equal to arc by radius, है ना, पर एंगल क्या 30 डिग्री रखेंगे क्या आप? अरे 30 डिग्री रखेंगे क्या? नो, कितना रखेंगे? ये तो रखेंगे पाई बाय 6, मतलब 30 इंटू पाई बाय 180, तो ये हुआ है पाई बाय 6। अब आर्क कितना आएगा? आर्क इज इक्वल टू पाई आर बाय 6, पाई आर बाय 6, तो पाई कितना? पाई है 3.14, आर कितना 4, ये 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 6.28 बाय 3, ये है तुम्हारा आंसर। 3 2 जा 6,
0, 3 9 27, 2.09 जिन लोगों का है वो सब करेक्ट है। 2.09 मीटर इज आर्क लेंथ। अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक पर बॉडी चलते समय अगर वो थीटा डिस्प्लेसमेंट करती है, मानो ये सेंटर वो बॉडी है यहां पर पी पॉइंट पर और वो चलती है सर्कुलर पाथ पर बिल्कुल क्यू पोजीशन तक, तो मानो ये एंगल बनता है थीटा। कितना ही एंगल? थीटा है। वी डोंट नो कितना है, थीटा है। then what is the angle, sorry, what is the displacement if radius of circular path is r? What is the radius, sorry, what is the displacement if this is? अब ये फॉर्मूला आप लोगों को पता था इसलिए आपने आंसर दिया, पर मुझे तो नए स्टूडेंट्स या कल जो एब्सेंट थे उनके लिए तो बताना है ना। अब ये हाँ 2r sin थीटा बाय 2, 2r sin थीटा बाय 2। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आप लोगों ने बताया इतना है। डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेट पाथ पर, डिस्प्लेसमेंट कहां पर? स्ट्रेट पाथ पर। बट इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन दिस, then that PQ line is divided into two equal parts. That is what R is a center of PQ. If it is so, angles are also divided into two equal parts. ये बनता है थीटा बाय 2, दूसरा भी बनेगा थीटा बाय 2. It means two triangles will be congruent. Which one? OPR and triangle OQR. These are congruent. Now ये कैसे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट, पर मुझे अब पी आर निकालना है। देन फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी आर you will get sin of theta by 2 is equal to opposite side upon hypotenuse. अपोजिट साइड कौन सी है? पी आर है। हाइपोटेन्यूज ओ आर नहीं है, ओ पी है, एंड दिस इज व्हाट ओपी। ओपी इज नथिंग बट रेडियस, एंड देयरफॉर पी आर is equal to radius into sin of theta by 2. Okay, got it? हाँ, पी आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाय 2। लेकिन पी आर एंड आर पी तो सेम है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस पी आर, पर पी आर तो ये है, and this is why we'll get 2r sin of theta by 2. Understood? जिन लोगों का 90 एंगल के समय गलत हुआ था उनकी गलती डबल है। वाई? पूछो क्यों? क्यों पूछो? क्योंकि उनको ये मैं शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था कल, फिर भी उन्होंने गलती की 90 डिग्रीज का बोलते समय, है ना। You can check your answer by this distance, sorry, by this formula. Understood this? फिर अभी ये एंगल छोटा हो या बड़ा हो, कितना क्यों नहीं छोटा होता एंगल, मानो ऐसा छोटा सा एंगल है, ये बिल्कुल ऐसा छोटा सा है, तो ये भी ये अपना फाइनल फॉर्मूला ओबे करेगा। गॉट इट? अंडरस्टूड? हम्म। चलो फिर बाद में
बाद में हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ और वेक्टर का यूज किया था। दोस्तों जैसे हम एक्सिस की बात किए वैसे कुछ कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। अगर ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, वो वहां से चल के गया पॉइंट Q तक जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 and z2. If it is so, then what is the distance PQ या डिस्प्लेसमेंट PQ ऐसा पूछा जाता। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो वी नो दैट फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये कैसे आ गया, कहां से? मानो ये ओरिजिन, ये ओपी है ना, मानो ये OQ, ये Q वेक्टर, ये P वेक्टर है ना, और ये तुम्हारा मानो R वेक्टर या PQ वेक्टर बोलेंगे अपन, PQ वेक्टर, क्योंकि P से Q तक गया। नाउ ट्रायंगल लॉ विल गिव यू दैट P वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। इज दिस सो? अरे ऐसा ही होगा ना। अगर ऐसा होता है तो हम इसे PQ वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, पर ये Q वेक्टर क्या है? इट इज नथिंग बट OQ वेक्टर, इट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। और अगर कोऑर्डिनेट्स दिए वाले हैं तो क्या हम लोग पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं आसानी से? बिल्कुल बता सकते, तो भी बताएंगे। क्या होता है देखो दोस्तों, इधर ये हो जाएगा Q वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस P वेक्टर सिमिलरली x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। Finished? If this bracket is multiplied by minus sign, then every term will be minus. And so next step will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। क्या ये फॉर्मूला देने वाला है तुम्हें पी क्यू वेक्टर? और इससे होगा हमारा PQ। कैसा होगा रे PQ? PQ का फॉर्मूला क्या आएगा? PQ का फॉर्मूला आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, सबका स्क्वायर, z2 माइनस z1 ब्रैकेट स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स अगर देते हैं तो ये फाइनल फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना, ये झंझट बीच में आप लोगों को कोई काम की नहीं है। हैव यू रिटन दिस फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला है? चलो हटा देता हूं मैं, हटाऊं? यस इट इज। नाउ टेक अ प्रॉब्लम, टेक अ प्रॉब्लम। अ क्रेन, बर्ड क्रेन, a crane fly from bird crane fly from 050 to -3 +2 +3 050 to the point -3 +2 +3. What is the displacement of the crane?
ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या आर या आप लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस -3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 5 -2 मतलब 3 उसका स्क्वायर 9, 0 -3 उसका स्क्वायर भी 9। तो ये तो 9 3 बार आ गए, इसका मतलब 9 का रूट लिया, 3 बाहर आया, 3 अंदर रहेगा, एक अंदर एक बाहर। एक को जमानत मिली, दूसरे को नहीं मिली। ऐसा है। 3√3 इज योर आंसर। समझे? बात पक्की? हम्म। अब मैं इसी प्रॉब्लम को दूसरी भाषा में दे सकता। भाषा कौन सी? कि भाई वो यहां यहां था, उसका डिस्प्लेसमेंट इतना इतना हुआ, तो वो आखिर कहां चले गया? बोल सकूंगा क्या? नहीं लिखो ऐसा है। क्या करते, बोलोगे ऐसा बोलेंगे, फिर वही बर्ड का कबूतर लेते, पिजन, नहीं क्या? ए पिजन was at या is at, कौन सा भी, is at a point, is at a point 0,0, नहीं -3, लिखो -3,0। he fly, it fly लिखो, it fly and said that, it fly and said that its displacement is 2i cap plus 5j cap minus 7k cap. Then what is the coordinates of final position? What are coordinates of the pigeon finally, or what are final coordinates of the pigeon? Come on friends, ये यहां कहीं था, वो बोलता है मेरा डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, हम पूछते हैं कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना, तो बोलेंगे पहला प्लस दूसरा, है क्या नहीं? फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना, तो पहला प्लस दूसरा, तो पहला है उसका 0i cap प्लस काय को -3j cap प्लस 0k cap प्लस उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ बोलता हो इतना -7k cap। तो देखो गलत हुआ क्या बराबर हुआ? 2 2 -7 राजनंदिनी का बराबर है। तो ये 2i cap, पर मैंने कोऑर्डिनेट्स पूछे थे राजनंदिनी, प्लस 2j cap -7k cap, therefore coordinates are 2, 2 -7. These are coordinates, क्योंकि ये वेक्टर अगर होता है 2i cap प्लस 2j cap -7k cap, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे पहले, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ऐसा सोचेंगे, तो ये डिस्टेंस एंड ये टाइम, if the body moves on same track, मतलब लीनियर मोशन, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो फिर ये डिस्टेंस बोलो या कोई डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात होगी। बट इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ सच अ मोशन, कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म मोशन,
तो मोशन का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कैसे? 0 से 2 चले गया टाइम, तो ये 2 किलोमीटर चली गई. 2 से 4 चले गया टाइम, तो उस 2 से 4 भी ये 2 किलोमीटर चली गई. 4 से 6 सेकंड चले गए तो भी ये 2 किलोमीटर चली गई. इट मीन्स दैट फॉर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम body moves through same distance. That is called equal distance in equal interval of time, called as uniform motion. Therefore graph is a straight line. 1 सेकंड के बाद 4 है, 2 सेकंड के बाद 8 है, 3 सेकंड के बाद 12 है, 4 सेकंड के बाद 16 है. इसका मतलब क्या है? हर एक सेकंड के बाद वो 4 मीटर्स आगे आगे चलती है. तो वही बात करेंगे अपन. अगर ये होता है 1 2 3 4 सेकंड्स, मतलब 4 मीटर्स, 4 16, और हमारा ये समय अगर होता है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड्स, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दैट. बट your angle will suggest you the speed of that body. Tan theta will be called as the slope. If theta is more, slope will be more, and hence body is faster than earlier. कैसे भाई? अगर ये दूसरा ग्राफ कोई निकालता, तो देखो कितने कम समय में, ये 1 सेकंड में वो कितना चले जाती, 3 से थोड़ा सा कम, और 16 किलोमीटर 3 सेकंड में 12 से कम, और 16 तो 2 सेकंड भी नहीं हो गए तो 16 किलोमीटर या 16 मीटर तक चली गई. इसका मतलब है दिस व्हीकल इज फास्टर देन अर्लियर, एंड वी गेट हियर थीटा डैश मोर देन थीटा. Hence, more the slope, more is the speed, more is the velocity. Understood? Pakka? Slope decides the speed. Slope decides the speed, and therefore, अगर किसी ने पूछा है कि मेरे पास ये ग्राफ है और ग्राफ में 4 लाइन्स है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, है ना? डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और ग्राफ आया है ऐसा, ये 4 सेकंड्स एंड ये 8 सेकंड्स, ये 20 मीटर्स. प्रेडिक्शन क्या करेंगे? ग्राफ देखते ही आप लोग इसके बारे में क्या क्या बताएंगे? डिस्क्राइब द ग्राफ. क्या हम सब लोग है यहां पर? Velocity is constant up to 4 seconds, then it come to rest. Speed is constant up to 4 seconds and then come to rest. बराबर है? बात पक्की है? हाँ? अगर मुझे ऐसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ से वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना है, तो कैसा निकालेंगे? आप ग्राफ निकालो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं देखता हूं. दोस्तों, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, आप लोगों ने बोला था कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट अप टू 4 सेकंड, तो वेलोसिटी कांस्टेंट अप टू 4 सेकंड कांस्टेंट है, और उसके बाद केम टू रेस्ट, मतलब वेलोसिटी 0. मतलब एक तो बताओ, नहीं बताने का है तो छोड़ दो, बताओ तो एक्स एक्सिस पर, क्योंकि वेलोसिटी 0.
और ऐसा ग्राफ ये दो लोगों ने बताया से मुझे, समझे? अरे ज्यांनी पाठवला नाही त्यांना कळालं का हे? ज्यांनी मला आन्सरच पाठवलं नाही त्यांना कळालं का? नक्की? सचिन शिंदे, आत्ता आला तुझा फोटो, प्राजक्ताचा आत्ता आला फोटो. आता काय कामाचा? आता गेला ना ते, मी सगळं शिकवलं ना इकडे. आता काय उपयोगच? आता आलेत ते फोटो, पण तोपर्यंत मी इकडे सांगून आलो. काय काय नाही तर आणखी पण नाही सांगितलं. हम्म हम्म ये आता झालं आमचं. आणि आता या ग्राफच्या साठी काय तुमचे कमेंट असतील बघा बरं. हा ग्राफ आहे डिस्टेंस वर्सेस टाइमचा. दोस्तों अगर मेरा ग्राफ ऐसा है तो क्या ये हर जगह अलग 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 स्लोप आएगा कि नहीं आएगा? इसका स्लोप अलग अलग आएगा। यहां पर का स्लोप, यहां पर का स्लोप, यहां पर का स्लोप. Slope is different at different position means velocity or speed is different at different position. अब डिफरेंट स्पीड तो है, पर क्या डिक्रीजिंग है क्या इंक्रीजिंग है? तो उसके लिए पूछेंगे खुद को, क्या स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो डिक्रीजिंग है, एंड दैट इज व्हाट डिक्रीजिंग. अगर ऐसी बात है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, तो इसको बोलते हैं डिसिलरेटेड मोशन. कौन सी मोशन? डिसिलरेटेड मोशन. और अगर ग्राफ रहता हमारा ऐसा, तो यहां पर स्लोप तो बिल्कुल डिफरेंट भी है और इंक्रीजिंग भी है. स्लोप इंक्रीजिंग and therefore it is accelerated motion. Accelerated motion. योगेश्वरी तिडकेचा नेटचा प्रॉब्लेम आहे. जाती येते जाती येते जाती येते. का कॉल येतोय म्हणून जाती काय माहिती? दुसऱ्याचा कॉल आला, काही आपलं कामात असलो आपण किंवा काहीतरी इकडे तिकडे बघताना लेफ्ट झालो, तसे होतं ते. बाहेर जाणं मध्ये येणं. तो बात समझ में आ गई. अभी ये तीसरा ग्राफ अगर मैं निकालता तो इसका स्लोप कांस्टेंट होता है. कहीं भी जाओ टेंजेंट निकालो तो एक ही स्लोप आएगा. दैट इज व्हाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब ग्राफ से तो समझ में आ गया, लेकिन ये एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है और उसके साथ इंस्टंटेनियस की बात करनी है. समझे? मग आता समजा जर का माझा ग्राफ असेल असा एखादा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये ऐसा ग्राफ है. अब यहां पर फ्रेंड्स, यहां जाने तक कुछ डिस्टेंस कवर क्या होगा? तो उसकी एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब ये जो कुछ आएगा मेरा नंबर आएगा ना कुछ. मान लो कि ये 20 मीटर्स पर सेकंड है, बट वी हैव स्टडीड जस्ट बिफोर
Slope at particular point gives the idea of speed at that point. Slope at particular point gives the idea of speed at that point. अब यहां से लेकर इस समय तक की बात करते तो ये एवरेज स्पीड आ गई, और मुझे समय अभी छोटा 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 करना है, इतना समय करना है, इतना समय करना है, और छोटा समय, और छोटा समय करना है, इतना सा समय करना है मुझे, बिल्कुल छोटा सा समय। मैं इतना बोला तो आप बोलेंगे नहीं सर और छोटा करो, मतलब कितना करो, dt समय लो। dt समय लेने के बाद ये छोटा सा हिस्सा मिलेगा यहां पर ग्राफ पर, और वो छोटा सा हिस्सा एक उस जगह निकाले वाले टेंजेंट का भी हिस्सा होगा, है क्या नहीं? होगा कि नहीं ये टेंजेंट का हिस्सा? उस टेंजेंट का स्लोप इतने छोटे से समय की वेलोसिटी या स्पीड, और उस समय की बात जब होगी तब हम बोलते उसे इंस्टैंटेनियस, छोटा सा। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर x है तो ये छोटा सा डिस्टेंस dx होगा की नाही? आणि स्लोप म्हणजे वेलॉसिटी असते, स्लोप म्हणजे वेलॉसिटी असते, आणि हे या छोट्याशा लाईनचा स्लोप म्हणजे काय? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या होगा? y2 माइनस y1 इस जगह होगा dx, x2 माइनस x1 क्या होगा? ये होगा dt, एंड दिस इज व्हाट the instantaneous speed या instantaneous velocity at that time। इंस्टेंटेनियस मतलब पलक झपकते ही, इस समय हमें तुझे याद, तेरी याद आई थी पलक। ऐसा बोलते समय हमें तेरी याद आई थी पलक झपकते ही, तो पलक ही झपकी नहीं, पलक तो सो गई थी कल। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है dx बाई dt। अंडरस्टूड? अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हर जगह वही रहेगी क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड हर जगह वही होगी क्या? तो आंसर है नहीं होगी, क्योंकि यहां का छोटा सा टाइम, छोटा सा डिस्टेंस तो अलग होगा। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी सेम तब भी होती जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तब। मतलब अगर ग्राफ हमारा ऐसा रहे तो फिर देखो इंस्टेंटेनियस मतलब छोटा सा हिस्सा लो स्लोप निकालो, छोटा सा हिस्सा लो स्लोप निकालो, हर जगह सेम आएगा। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर सेम इफ velocity is uniform। average speed and instantaneous speed are same if and only if velocity speed is uniform। मानते? मान गए? अगर स्पीड वैरिंग है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो एवरेज स्पीड विल बी डिफरेंट देन instantaneous speed if body covers different distance in equal interval of time, किंवा same distance in different intervals of time। body covers different distance in equal interval of time, हे सेम आहे पण dx डिफरंट आहे, म्हणजे स्लोप डिफरंट आहे, म्हणजे स्पीड डिफरंट आहे। किंवा dx सेम आहे पण dt डिफरंट आहे तरी स्लोप डिफरंट आहे, म्हणजे स्पीड वॅरिंग आहे। सो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन slope of the d versus t graph is different at different times, means instantaneous speed
is different at different time. Understood दोस्तों? क्या समझ में आया इतना? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात समझ में आ गई? अभी तक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं बताया नहीं, उसका अलग अलग कैसे फॉर्म्स होते हैं वो बताया नहीं, लेकिन चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, we'll see tomorrow at the same time in the same fashion.